ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا۔ قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر ووٹنگ شروع ہے۔ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ۔ لاہور میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد مد مقابل ہوں گے۔ این اے 18 ہری پور میں سب سے بڑا مارکا۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شہرناز کا نون لیگ کے بابر نواز خان سے مقابلہ ہوگا۔ ڈی جی خان میں اتحادی جماعتیں ہی آمنے سامنے آ گئی۔ نون لیگ کے سردار وقار اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسہ میں ٹاکرا۔ فیصل آباد میں لیگی امیدوار بلال بدر کا اپنی ہی پارٹی کے سابق امیدوار نواب شیر وسیر سے جوڑ۔ این اے 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان مد مقابل ہیں۔ این اے 143 میں نون لیگ کے توفیل جٹ کا آزاد امیدوار زرار اکبر سے مقابلہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کا یہ معاملہ ہے، جہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے فوج بھی تعینات ہے۔ انتخابی حلقوں میں فوجی دستے 22 سے 24 نومبر تک وہاں پر موجود رہیں گے۔ ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر سے، جہاں پر ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا۔ قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر ووٹنگ شروع ہے۔ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ۔ لاہور میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد کے درمیان مد مقابل ہیں آپس میں۔ این اے 18 ہری پور میں سب سے بڑا مارکا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شہرناز کا نون لیگ کے بابر نواز خان سے مقابلہ۔ ڈی جی خان میں اتحادی جماعتیں ہی آمنے سامنے۔ نون لیگ کے سردار قادر اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسہ میں ٹاکرا۔ فیصل آباد کی اگر بات کریں تو فیصل آباد میں لیگی امیدوار بلال بدر کا اپنی ہی پارٹی کے سابق امیدوار نواب شیر وسیر سے جوڑ۔ این اے 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان مد مقابل ہیں۔ این اے 143 میں نون لیگ کے توفیل جٹ کا آزاد امیدوار زرار اکبر سے مقابلہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا ہے، جس حوالے سے بتا رہے ہیں، جہاں پر مختلف امیدوار آپس میں مد مقابل ہوں گے، اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، جہاں پر قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر ووٹنگ شروع ہے۔ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ۔ لاہور میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد مد مقابل ہیں۔ این اے 18 ہری پور میں سب سے بڑا مارکا۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شہرناز کا نون لیگ کے بابر نواز خان سے مقابلہ ہے۔ ڈی جی خان میں اتحادی جماعتیں ہی آمنے سامنے ہیں۔ نون لیگ کے سردار قادر اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسہ میں ٹاکرا۔ فیصل آباد میں لیگی امیدوار بلال بدر کا اپنی ہی پارٹی کے سابق امیدوار نواب شیر وسیر سے جوڑ۔ این اے 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان مد مقابل ہیں۔ این اے 143 میں نون لیگ کے توفیل جٹ کا آزاد امیدوار زرار اکبر سے مقابلہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا جو دنگل ہے وہ سج گیا ہے۔ اس موقع پر مختلف علاقوں میں جہاں پر یہ انتخابات ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، حکومت سے فوج تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ تو آج کے موقع پر، اس موقع پر جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، انتخابات ہو رہے ہیں، اس موقع پر فوج بھی تعینات کی گئی ہے ان علاقوں میں جن علاقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی اگر بات کر رہے ہیں تو سیکیورٹی اس وقت مختلف علاقوں میں فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا ہے، جس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر اس وقت ووٹنگ کا عمل بھی شروع ہے۔ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ۔ لاہور میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد مد مقابل ہیں۔ این اے 18 ہری پور میں سب سے بڑا مارکا، جہاں پر پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شہرناز کا نون لیگ کے بابر نواز خان سے مقابلہ ہے۔ اگر ڈی جی خان کی بات کریں تو ڈی جی خان میں اتحادی جماعتیں ہی آمنے سامنے ہیں۔ نون لیگ کے سردار قادر اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسہ میں ٹاکرا ہے۔ اگر اس کے بعد فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد میں لیگی امیدوار بلال بدر کا اپنی ہی پارٹی کے سابق امیدوار نواب شیر وسیر سے جوڑ ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اپنے نمائندے شکیل حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل حبیب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اور اس ضمنی انتخابات کو لے کر عوام میں کیسا جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے فیصل آباد میں 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے کافی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے عوام کی حلقوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں تو فیصل آباد میں یہ بڑے حلقے 2 ہیں این اے کے، جس میں این اے 96 تحصیل جڑا والا کا ہے، جس میں جو ہے وہ ٹوٹل ووٹر جو ہے وہ 14,133 آج اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ اپنی ہی جماعت کا جو ہے وہ مسلم نون سے ہی جو ہے وہ آج جو ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جس میں سینیٹر طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری کا مقابلہ مسلم نون کے ہی جو ہے وہ
ताल्लुक है उनका भी आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। MNN जो है वो नवाब शेर बसेर, उनका मुकाबला आपस में तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर हल्का NH 104 की मैं बताऊं तो हल्का NH 104 में टोटल जो है 5,57,637 वोटर जो है वो दर्ज हैं। इस हवाले से यहाँ पर भी जो है वो कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दयान अहमद का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जवेद से, इनका भी जो है वो तगड़ा और कांटे का मुकाबला होगा। मजबूत शख्सियत है दोनों ही, और इस हवाले से काफी यहाँ पर वोटरों की तादाद जो है वो उनकी भी काफी गहमा गहमी देखने में आ रही है। मैं इसको बताऊं तो फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो सूरत हाल काफी रूल पर है इलेक्शन के हवाले से। तो फैसलाबाद की अगर बात करें PP 115 की, तो PP 115 में जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल भी काफी डिफरेंट है। यहाँ पर भी पाकिस्तान PP 115 में मजमूई तौर पर 5 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल है। इनमें से सबसे मजबूत उम्मीदवार मियां ताहिर जमील और आजाद उम्मीदवार मलक मोहम्मद असगर के साथ इनका कांटे का मुकाबला होगा। इसी तरह 116 जो है वो PP हल्का 116, इसमें भी जो है वो बड़ा जोड़ तोड़ देखने में आ रहा है कि 7 उम्मीदवार इसमें मध्य मुकाबले, जिनमें सबसे ज्यादा मजबूत जो उम्मीदवार है वो सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार है। इनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MP मलक असगर अली कैसर से होगा, जो कि आजाद हैसियत से इस वक्त वो इलेक्शन में की दौड़ में शामिल है। दोनों जमातें जो है वो इस वक्त जो है चाहती जमातों के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर के दोनों सीटें जो है वो पावर में हैं इस वक्त, और अब देखना यह है कि कब किसके जरिए आज का जो है वो सेरा जाता है, कौन इस हल्के का सुल्तान बनता है। तो फैसलाबाद में सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त की गई है कि हर तरह से जामे तलाशी लेने के बाद जो है वोटर को जो है वो पोलिंग बूथ तक जाने की इजाजत होगी। जी अच्छा शकील, अभी मुझे बताइएगा कि अभी हमने देखा कि सिक्योरिटी के जैसे आपने बात की, क्या सिक्योरिटी पहले की निस्बत इस दफ़ा फुल प्रूफ की गई थी, ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये एक बड़ा क्योंकि इसमें जो है वो 64 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास भी करार दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलिंग स्टेशनों की रसाई तक जो है वो वहाँ पर पाक फौज के दस्ते तैनात किए गए हैं। इस पाक फौज जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही है इसमें, और बड़ा अहम ये हल्का है जिसमें जो है वो सिक्योरिटी के पहले की निस्बत जो है वो ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। TPO फैसलाबाद और RTO फैसलाबाद खुद इनकी निगरानी भी कर रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और CP ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें जो है वो CCTV कैमरों के जरिए खुसूसी तौर पर उसकी निगरानी की जा रही है। 1400 से ज्यादा जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, जो कि इस वोटिंग वाले हलकों में जो है वो इसकी निगरानी करेंगे। तो काफी जो है वो पहले की निस्बत जो है बेहतर इंतजाम सिक्योरिटी के यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें लाहौर से ज्वाइन किया अपने नुमाइंदे नबील लकी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लाहौर में इन ज़मनी इंतखाबात को लेकर? जी बिल्कुल, लाहौर में एक हल्का NH 129 में ज़मनी इंतखाब का अमल जारी है। 8 बजते ही पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। ताहम गहमा गहमी इस वक्त जो है वो रिवायती गहमा गहमी है जो अरूज पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज नुमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है। ताहम अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 17 उम्मीदवार NH 129 में आज इस वक्त अपनी जो है वो किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि अगर NH 129 की मजमूई सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो 160 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और NH 129 में 174 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार जो है वो दिया गया है। मगर अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो NH 129 में वोटर्स की कुल तादाद जो है 5,58,364 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,89,000 है। ताम खवातीन वोटर्स की तादाद जो है 2,69,000 जो है बताई जा रही है। हल्के में कुल जो है वो 334 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 133 मर्दों के हैं, 131 खवातीन के हैं और 70 को जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ताहम टोटल जो अगर हल्के के बारे में बात की जाए तो 29 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। लाहौर का ये एक अहम तरीन हल्का है। अगर इलाकों की बात करें तो चौबुर्जी, शामनगर, गुलशन रावी, समलाबाद और मुल्तान रोड, शेराकोट, बकर मंडी, बाबू साबू, कादिरपुर रावा और नगीना कॉलोनी के इलाके जो है वो इसमें शामिल हैं। तो हल्के में कुल 1045 पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए गए। आम इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अजहर जो थे वो फतह याब हुए थे। आम इंतखाबात में भी हाफिज नुमान ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से
यहाँ से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन शिकस्त हो गई थी। अब उनके हाफिज जो मियां अजहर हैं, उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त जो वो खाली हुई थी, और अब इस अहम तरीन नशिस्त पर लाहौर के में जो है वो एक ही हल्के में जो है वो ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, और जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा नबील नकवी के आज के दिन वोटर्स की जो मुतवक्का तादाद क्या है, और ये आम इंतखाबात की निस्बत ज़्यादा आप देख रहे हैं या कम है? देखिए, आम इंतखाबात का जो जोश होता है वो तो एक अलग ही होता है, लेकिन अगर हम इस वक्त ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो इस हल्के में हमने जब कैंपेन की कवरेज वगैरह की तो हमने देखा कि इसमें लोगों में जो था जोश एक्स्ट्रा नजर आ रहा था। खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हाफिज नुमान है, उन्होंने जो अपनी भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन की थी। लोग जो थे काफी पुरजोश थे, और कल भी जब कैंपेन का अमल जो था उम्मीदवारों की जानिब से जब खत्म हुआ था, लेकिन जो उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे हम लोगों को हल्के में जो थी गहमा गहमी नजर आई। वोटर्स अपने अपने वोट ढूंढते हुए नजर आए। तो जो वोटर है वो उम्मीद है कि टर्न आउट आज इस हल्के का जो है वो बेहतर रहेगा। आम इंतखाबात में भी इस हल्के का टर्न आउट जो था वो लाहौर के बेहतर हल्कों में से एक हल्का ये था जहाँ पे ये जो टर्न आउट था वो ज्यादा था। तो यहाँ पे ये कहा जाए कि हल्का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तो समझा ही जाता था, लेकिन तहरीक इंसाफ का भी अब यहाँ पे जो वोटर की तादाद है वो कुछ ज्यादा कम नहीं है। माजी में भी हमने देखा है कि महर इश्तियाक यहाँ से जीतते रहे, मियां मरगूब यहाँ से जो है वो जीतते रहे, और इनके साथ साथ ही राना मशहूद भी यहाँ से जीतते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अच्छे उम्मीदवार यहाँ से खड़े किए जाते रहे, और अब मियां अजहर के बाद उन्हीं की ये रिश्तेदार है अरसलान अहमद। तो दोनों जानिब से हमने देखा कि दोनों जानिब के जो सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं उनमें जोश भी है। और ज़मीनी इंतखाब के हवाले से, क्योंकि ज़मीनी इंतखाब में अमूमन थोड़ा जो है वो जोश कम होता है, लेकिन N139 में हमें जो जोश है वो दीदी नजर आया। जी अच्छा शकील, अभी नबील नकवी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शकील, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें NA96 की, तो वहाँ पर जो नून लीगी उम्मीदवार हैं बिलाल बदर, वो अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर वसेर से उनका जोड़ पड़ा हुआ है। तो इस आप मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? अगर हम NA196 की बात करें, 96 की, तो वहाँ पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और आवाम में आप कैसा जोश व खरोश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा अहम हल्का है। इस हवाले से देखा जा रहा है कि NA96 में दोनों जमातें जो है वो मुस्लिम नून से एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल हैं। तो इस वक्त जो है वो अगर देखा जाए तो फिलहाल जो इस वक्त जो है वो अपना नवाब शेर वसेर है, उनका पलड़ा जो भारी है, वो इस हवाले से मजबूत कैंडिडेट बन के जो है वो सामने आए हैं। और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इस हल्के में सिक्योरिटी ज्यादा लगाई इसी वजह से गई है। ये जो मेन हल्के हैं इनमें सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अहम हल्का है और खास हल्के में शामिल आता है। तो यहाँ पर जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के जो है वो सेनेटर तलाल चौधरी के भाई हैं बिलाल बदर चौधरी, उनके साथ उनका मुकाबला है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस वक्त इलेक्शन में की दौड़ में शामिल है, जबकि जो है वो MNA की दौड़ में जो है वो बिलाल बदर जो है वो उनके साथ मद्दे मुकाबिल है। तो दोनों जमातें जो है वो अपने जो है वो मजबूत हैं, लेकिन जो है वो नवाब शेर वसेर है उसका पलड़ा यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। वोटरों की अगर बात करें तो वोटर काफी यहाँ पे पुरजोश हैं, और भरपूर दोनों कारकुनान की जानिब से जो है वो गहमा गहमी देखने में आ रही है। ठीक है शकील, अभी आप साथ ही रहिएगा। नबील नकवी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अगर हम सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं तो IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि वोटर्स को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये एतमाद बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इकदाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? हाँ जी बिल्कुल, देखिए लाहौर में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज से ही जो पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल था वो पुलिस ने संभाल लिया था। 5000 से ज्यादा आज जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो आज इलेक्शन ड्यूटी जो वो सर अंजाम देंगे, जबकि शहर में जो जगह जगह जो नाके भी काजारे लगाए जाएंगे ताकि अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो बरकरार रखा जा सके। जबकि सरबराह लाहौर पुलिस के मुताबिक उनका ये भी कहना है कि पुलिस ज़मीनी इंतखाब में के पुरअमन इनकाद के लिए भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर रही है। असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जबकि CCP लाहौर बिलाल कमियाना के मुताबिक कंट्रोल रूम्स और
CCTV कैमरों के जरिए मौसर मॉनिटरिंग को जो है वो यकीनी जो है वो बनाया जाएगा। ताहम आज अगर कहा जाए तो पुलिस भी काफी हद तक जो है वो मुतहरिक है और पुलिस के साथ साथ जिले इंतजामिया बिलखसूस DC लाहौर सैयद मूसा रजा जो है वो भी काफी हद तक हम लोगों को मुतारिक नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उनकी जानिब से भी हल्के के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया गया ताकि हल्के में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाए और गुज़िश्ता रोज उनकी जानिब DC लाहौर और जिला इंतजामिया की जानिब से मौका अपनाया जा रहा था कि उनका अवलीन जो मकसद है वो आज के ज़मनी इंतखाब की जो शफाफियत है और उसमें अमन अमान बरकरार रखना है। जी अच्छा नबील नकवी, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने पोलिंग स्टेशन की हसासियत की बात की, तो आपने कहा कि चंद ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया और जिनको कुछ हैं कि जिनको हसास नहीं करार दिया गया, तो इनका मेयार क्या रखा गया इंतजामिया की जानिब से? किन मेयारात की बुनियाद पर उन चंद पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया? जी देखिए, अगर हसासियत की बात की जाए तो हल्के में 160 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया जा रहा है और इसके साथ साथ ही जो है वो 174 पोलिंग स्टेशन हैं जिनको इंतहाई हसास करार दिया जा रहा है। ताहम इस वक्त हल्के में जो मजमूई तौर पर 334 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और जिनको इंतहाई हसास करार दिया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है वो ज्यादा है और तमाम आने वालों को खास तौर पे जो वोटर्स आ रहे हैं उनको तलाशी के बाद जो वो अंदर जाने की जो वो इजाजत जो है वो दी जा रही है और जो 60 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे भी पुलिस जो है वो गुज़िश्ता रोज से डिप्लॉय कर दी गई थी। ताहम अगर आप गुज़िश्ता इंतखाबात के हवाले से बात की जाए और आज के ज़मनी इंतखाब को हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो गुज़िश्ता इंतखाब में भी हमने देखा कि ओवरऑल मजमूई तौर पर इस हल्के में जो सूरत हाल रही है वो वहाँ पे पुरअमन इंतखाब ही हुआ है हमेशा। गुज़िश्ता अगर आम इंतखाब की बात करें तो आज भी पुलिस जितनी हमें एक्टिव नजर आ रही है और जिला इंतजामिया जितनी मुतहरिक है, तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आज का पूरा अमल जो है 8 बजे से 5 बजे तक का पोलिंग का अमल जो वो शफाफियत के साथ पुरअमन तरीके से मुकम्मल होगा। जी ठीक है नबील नकवी, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, शकील हबीब आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।